to give bouquet to Dr. Amarjit Singh. Thank you, sir. So now I call Dr. Monica, the introduction of the event and our resource person. Thank you, sir. Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Respected resource person for the day, Dr. Amarjit Singh, Assistant Professor, HP University, Shimla, HOD Dr. Sujit Chande, worthy faculty members and dear students. I extend a warm welcome to you all on behalf of Department of Physics. The photons which constitute a ray of light behave like intelligent human beings. Out of all possible paths, they always select the one which will take them most quickly to their goal. The interesting description of light by Max Planck captures the fascination of numerous physicists with the concept of light. Dr. C.V. Raman, Nobel Prize winner physicist, had described how it seemed to his team of researchers that light scattering might carry one into the deepest problems of physics and chemistry. Thus, our topic for today, that is a chronological perspective of the concept of light, seeks to delve into the essence of physics, which Niels Bohr described as the belief that a simple and consistent description of nature is possible. Therefore, to enlighten us all on today's topic, it is indeed my special privilege and pleasure to welcome Dr. Amarjit Singh, Assistant Professor, Himachal Pradesh University, Shimla, as our resource person for the day. Sir, you have been serving as Assistant Professor in HP University, Shimla for the last 9 years. You have done your PhD from Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, and postdoc from ESRF, France. You have guided 5 PhD researchers and have about 32 research publications. We are pleased to have you here, sir. Once again, I welcome you all. Thank you very much. फाइनल ईयर वाले
So, very good morning to all. Good morning, sir. So first of all, I'm very thankful that I'm here. So I extend my thanks to Principal Ma'am, Dr. Arun, Sujit Sir, Dr. Monica and Ma'am Sheetal Ma'am. So thank you very much for your time here, and we are going to learn something. You see that ये जो फिनोमिना है लाइट का, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। आप सभी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे एक दूसरे से कुछ मिलके, और ये वन वे ट्रैफिक जो है हम नहीं करेंगे इस क्लास को। क्लास में कभी मालूम आता है जब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जब मेरे से सवाल पूछेंगे या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके उत्तर देंगे। ओके, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे सवालों के उत्तर आप ही के पास हैं। I will just put right questions in front of you and I will get the answers from you. So इस जो टॉपिक है ये लाइट का, हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। हमने अपना जब क्लास 1 क्लास 2 से इसको पढ़ना शुरू किया, हमने लेंसिंग के बारे में पढ़ा, हमने कैमरास के बारे में पढ़ा, और इसका लाइट का हमने फिजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ा। लाइट इज अ वेव, हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने फिर ये इंटरफेरेंस के बारे में जाना, बहुत सारी इस पे बातें हुई, कोहेरेंस की बात हुई। सो ऑल दिस कंसेप्ट एक साइंटिफिक वे में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। इससे हमें एक और फायदा मिलेगा, खाली हम लाइट के बारे में ही नहीं जानेंगे, वी विल नो वन मोर थिंग, दैट जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो कैसे हमारा डेवलप होता है और क्यों बहुत जरूरी है। हम स्टूडेंट तो साइंस के हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, then we will not succeed in the field of science. So first of all, we need to develop this temperament. That is the way of thinking. हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को परसीव करते हैं, वो अगर हमने डेवलप नहीं किया तो एक तो हमें साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा और हम उसको ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो हम उसको उस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है। अब जैसे मैं आपके सामने प्रश्न रखूं, आप सभी सोचिए, what do you understand by scientific temperament? अभी मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है इसका आपके लिए, क्या मायने हैं? आसान रहिए, आराम से और जवाब दीजिए। कोई भी आप गलत सही जवाब कुछ भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। गलत और सही जवाब कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ आप इंटरेक्ट करें। आप देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात कर रहे हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम यूजी पीजी में पढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं हम? जब तक एक जो मेन क्वालिटी है जो हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए वो क्या है एज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट? क्या समझते हो जब मैं शब्द बोलता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो इस शब्द के आपके लिए मायने क्या है? हाँ देखो, बहुत अच्छा शाबाश। साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे हम सोचते हैं तो साइंस की भाषा में सोचते हैं, और हमारा जो भी थॉट्स है वो हम साइंस से लेकर आते हैं। तो हमारा पूरा जो नजरिया है वो साइंटिफिक। ओके, बहुत अच्छा। एक्चुअली व्हाट मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देता हूँ, वो कहने की कोशिश जो कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक जब हम कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसके पीछे एक साइंटिफिक आर्गुमेंट होता है। एक छोटी सी बात करें कि हम यहाँ किसी ये सारे रूम को बंद कर दें और किसी स्टूडेंट को हम यहाँ उसके रूम में बंद कर दें थोड़ी देर के लिए और हम बाहर चले जाएं,
और हम देखें कि वो स्टूडेंट तो बाहर घूमता फिर रहा है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि भाई कमरे में आएंगे, हमें कहीं ना कहीं ट्रेस मिलेगा, जैसे खिड़की टूटी हुई है, दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ है, वहां से फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दरवाजा तोड़ के ये यहाँ से निकला है, एंड वी कैन फाइंड एन एक्सप्लेनेशन, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, जिसको हम कहते हैं। और अगर हमें ऐसा कोई ट्रेस ना मिले तो वी विल बी पजल्ड, वी से ये कैसे हुआ, ये हो कैसे सकता है। So this does not connect our dot. This does not connect us logically. तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में एक लॉजिक होता है, एक you can say एक कॉज है, जैसे एक इफेक्ट है। जैसे ये पार्टिकल है, अगर हम इसको शुरू से इसके इनिशियल वेलोसिटी दे दें और तो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद वो कहाँ पहुंचेगा। अब जैसे चंद्रयान की बात करें तो जिस दिन उन्होंने वो शूट किया था उससे पहले ही, जब रॉकेट टुक ऑफ, तो उससे बहुत पहले ही दे प्रेडिक्टेड द एग्जैक्ट टाइम दैट एट व्हाट टाइम दिस विल लैंड ऑन द मून, ऑन व्हाट डेट इट विल लैंड ऑन द मून। सो उसके पीछे बहुत सारी साइंस है। दे हैड डन द कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन लॉजिकली दे कैलकुलेटेड हाउ मच टाइम इट विल टेक इन दिस ऑर्बिट, हाउ मच टाइम इट विल टेक इन दैट ऑर्बिट। तो जब हम एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर पाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज साइंटिफिक, है ना। ये आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि जो हम साइंटिफिक बात करें, हम एक लॉजिकल बात करें, जिससे कि हम एक प्रिंसिपल के थ्रू, देयर इज अ प्रिंसिपल गवर्निंग इट व्हिच कैन टेल अस, व्हिच कैन प्रेडिक्ट अस हाउ थिंग्स हैपन। ओके, और आप बैठिए। Anything else? देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, ये आपकी सोच को उभारेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें अभी। सर दिस मेथड और जो है लॉजिकली मतलब जो रिलेट है थ्योरिकल और जो हम मेजरमेंट देखते हैं, कोई चीज को एक्सपेरिमेंटली दोबारा करके देखते हैं, अगर वो वैसे ही हो रही है बार बार, उन चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं तरीकों। ओके, एक्चुअली उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई उन्होंने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस में एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है उस किसी भी घटना का बार बार होना। अगर आप इनिशियल पैरामीटर उसके सेम ही रखते हैं, इफ यू फायर ए बुलेट विद सम v velocity you can do it n number of times, वो रिजल्ट वही आएगा। there is a repeatability, you can repeat things, everything you follow that scientific principle, you follow that initial your system, follow that equation, you are going to get the same result all the time। और यही इसकी पावर है। अगर हम इस बार ये करते हैं तो कुछ और रिजल्ट आता है, फिर हम वही करते हैं कुछ और रिजल्ट आता है, तो उसको हम साइंस नहीं कह सकते। वो कहेंगे कि पता नहीं, इट्स नॉट फॉलोइंग एनी प्रिंसिपल, इट्स नॉट फॉलोइंग एनी रूल। वो अपने आप रैंडमली जैसे टॉस करते हैं कॉइन को, कि कभी हेड आ जाता है कभी टेल आ जाता है, हम बता ही नहीं सकते क्या आएगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी पावर है, और वो रिपीटेबिलिटी ही उन्होंने बताया कि वी कैन रिपीट इट, इट विल हैपन अगेन एंड अगेन इफ यू डू इट। सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग of scientific temperament। Yes। और कोई? सर जैसे कोई टॉपिक होगा उस पे डिस्कशन होगी, उसके बाद आज सर जैसे टॉपिक लेंगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट होंगे उसमें, और फाइनल में कंक्लूजन आएगा। ये साइंटिफिक ओके, मतलब जब हम बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट तभी होता है जब दो लोग हों, एक पर्सन कुछ और कह रहा हो और दूसरा पर्सन कुछ और दोनों में कुछ एग्रीमेंट ना हो और दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट करते चले जाते हैं हम। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, और उस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से हम जैसे प्रोसीड करते हैं तो हम एक सही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट का पर्पस झगड़ा करना है तो हम झगड़ा करके अपने घर चले जाएंगे कि भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मेरी बात मत मानिए, तो वो साइंस का पर्पस नहीं है। आर्ग्यूमेंट इज टेकन इन वेरी पॉजिटिव लाइट दैट द ट्रुथ मस्ट कम आउट, द रिजल्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी द ट्रुथ। अब मेरी परसेप्शन कुछ और है, आपकी परसेप्शन कुछ और है, उसको हम लॉजिकल वे में लेके चले जा रहे हैं,
और वो आर्ग्यूमेंट एक डेवलप होगा कंसेप्ट में, जो एक सभी उसको मानेंगे, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, सब उसको मानते चले जाएंगे। So that's a very good point. Anybody else? ESC वाले ESC स्टूडेंट्स हैं इधर। मतलब आप सभी ये सोच के देखिए, आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज ट्रेनिंग आवर माइंड टू थिंक। तो हम कैसे ट्रेन करेंगे अपने माइंड को जब तक हम अपने सवाल ही नहीं रखेंगे अपने मन में, उनका उत्तर जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी आर्गुमेंट तो चलता रहेगा गलत सही, उससे नहीं घबराना है हमें, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट अनलेस यू ब्रिंग दैट यू हैव दैट पर्सपेक्टिव इसके बारे में, तो आपके लिए जो है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के क्या मायने हैं। अभी आप देखिए बहुत अच्छे आंसर आप ही ने दिए, और जो मैंने आपको शुरू में कह रहा था कि मैं सवाल करूंगा, जवाब आप ही देंगे, और वो जवाब आपके पास है, और मुझे 3 बड़े अच्छे जवाब इसमें ऑलरेडी मिल गए। मैं 1-2 की और को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इफ इट इज नॉट देयर देन आई प्रोसीड। सर, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चीजों के प्रति। फॉर एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एक कॉमन मैन है, अगर हम वॉक कर रहे हैं और उसका जो स्लीपर पहने है ना उसने, अगर वो मतलब घिस चुके हैं, उनमें फ्रिक्शन नहीं रही है, तो वो ये मानेगा कि हम गिर जाएंगे। उसको ये वजह पता जरूरी नहीं है कि पता होगी भी या नहीं होगी, तो साइंटिफिक एटीट्यूड है जिस बंदे का, उसको ये पता होगा कि फ्रिक्शन कम हो गई सरफेसेस के बीच में, चप्पल के सरफेस और फ्लोर के, तो उसकी वजह से गिरने के चांस ज्यादा है। तो जब हम चीज़ों को साइंटिफिक एटीट्यूड की वजह से देखते हैं, किसी के पीछे लॉजिक रीजन देते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन करके किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ऑब्जर्व करके चीज़ों का आंसर पाते हैं, जो ट्रूथफुल की तरफ हम ले जाता है, तो वो ओके। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली हमें जो अपनी डेली लाइफ के चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं, उसमें साइंस का एप्लीकेशन है वो देखना चाहिए कि साइंस वहाँ कैसे अप्लाई हो रही है। मतलब देखिए, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जैसे मेरी चप्पल घिस गई तो मैं नहीं ले आऊं, उसमें साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आई कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज। एंड जैसे उन्होंने बताया, और बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं कि हम डेली लाइफ में ये सोचें कि अभी किसी ने शुरू में रेनबो देखा, तो किसी के मन में तो देख के बस ये हुआ कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। किसी ने सोचा ये रेनबो बनता कैसे है, तो वो जो जिज्ञासा मन में जागी ये रेनबो बनता कैसे है, दैट इज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। यू आर विलिंग टू नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग। एक जो खाली एक सुंदरता को निहारने वाला है, वो बस ये कहेगा कि हाँ वाओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एंड वहीं उनकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। बट द पर्सन विद द साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस विल आस्क हाउ दिस कम, व्हाट इज द नेचुरल फिनोमेना बिहाइंड दिस। जब बारिश पड़ रही है अक्सर हमें तभी दिखाई देता है, वो बहुत सारे पैरामीटर उसमें इंक्लूड करेगा, सनलाइट आ रही है तभी हमें वो दिखाई देता है, एंड व्हाई देयर आर सो मेनी कलर्स। सो दिस इंक्विजिटिवनेस, ये जो हम चाहते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, और तब हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है। और आर्गुमेंट के लिए वी शुड बी विलिंग टू चेंज ऑल द टाइम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो साइंस हम आज जानते हैं, आप कोई भी जो फिजिक्स आपको पढ़ाई जाती है, जो जानते हैं, इज इट अल्टीमेट ट्रुथ, या ऐसा हो सकता है कि इसमें और भी एडवांसमेंट हो, ऐसा हो सकता है कि अब जो थ्योरीज हैं वो कंप्लीटली बदल जाए, हम हो सकता है कि जो एक ट्रुथ है वो पूरी तरह से अभी नहीं जानते। तो कितने लोग कहेंगे कि ये पूरी तरह से हम साइंस को जान गए, इस प्रकृति को समझ गए, और कितने लोग कहेंगे कि हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपने हाथ खड़े करेंगे, कितने कहेंगे कि हमने सब कुछ समझ लिया है प्रकृति के बारे में एज ए फिजिसिस्ट, और कितने हाथ खड़े करेंगे कि हमने नहीं समझा है अभी। हाथ खड़े करिए। ओके, सो वेरी गुड, यू ऑलरेडी नो दिस एक्चुअली। सो द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर हम पिछले 100 साल में चले जाएं, 200 years back, and think what was the science, या और 200 साल पीछे चले जाइए, साइंस क्या
उस टाइम पे फिजिक्स क्या थी, शायद न्यूटन के लॉ, उससे ज्यादा कोई साइंस थी नहीं। हम मैकेनिक्स ही पढ़ते थे, फिजिक्स का मतलब मैकेनिक्स ही होता था, न्यूटन लॉ। आज आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आज आप क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, आज आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, आज आप और सारी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं आजकल। तो इन 100-200 सालों में एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, और वो कैसे कैसे हमारी परसेप्शन को उसने चेंज किया है, कैसे कैसे उसने हमको चेंज किया है। एक फिनोमेना है लाइट का, हम छोटा सा उसको डिस्कस करेंगे, उसमें सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, फिजिक्स के जो इशू हैं, कोई उसमें बड़ी साइंस नहीं है, पर कैसे हम चेंज हो रहे हैं, कैसे हमें बदलाव हो रहा है। एक साइंटिफिक जो टेम्परामेंट का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी शुड एक्सेप्ट चेंजेस, we should accept changes because these are always happening in the nature, they are always happening in the surrounding. अगर हम rigid बन गए कि नहीं यही है, then we cannot progress. So we should have a flexible mindset that we are willing to change, we are willing to change our perceptions. Argument का असली पर्पस तो यही है कि हम आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। हमने अपनी परसेप्शन अगर एक बना के ही बैठ ली है तो ना तो साइंस प्रोग्रेस होगी ना हम प्रोग्रेस होगी। तो we are willing to change. That's one more thing which is very important. तो चलिए अब मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को लेके आपके पास आपको लेके चलता हूँ। लाइट का जो एक पहले इसमें थोड़ा सा देखिए, ये जो फिजिक्स वाली अप्रोच है, जो वेस्टर्न साइंस की अप्रोच है, एक मेटाफोरिकल वे है। हम लाइट का मतलब नॉलेज से भी समझते हैं कि ईश्वर हमें प्रकाश दे। उस प्रकाश का मतलब ज्ञान है, जो हमें बुद्धि है, जो हमारे अंदर की प्रभा है, उसको जागृत करे ताकि हम समझ पाए। तो एक तो ये हमारी जो अप्रोच है, जो इंडियन है, जो इंटरनल है, हम अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, और हमारे जो योगी हैं उन्होंने इसमें बहुत रिसर्च की है इंडिया में। जो अभी साइंस का डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं, इट इज मोस्टली वेस्टर्न। जो आज मॉडर्न साइंस आप पढ़ते हैं उसमें जो अब इसमें परसेप्शन है, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने बहुत पहले साइंस में हम बहुत एडवांस थे, पर शायद उसका कहीं ना कहीं वर्णन वेदों में भी मिलता है, पर हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जो रिटन टेक्स्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं को प्रूफ माना जाता है। तो वो रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम आगे चलते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस बात को, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कि चीजें शुरू से ऐसे नहीं थी। जो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई, जिस यूनिवर्स में आज हम रहते हैं, चांद है, तारे हैं, पृथ्वी है, और बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं, वो एक टाइम था वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम एक बिग बैंग फिनोमेना कहते हैं, वहां से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, और बहुत सालों तक, लाखों सालों तक यहाँ कोई जीवन नहीं था। आपने बायोलॉजी में जो ये पढ़ा होगा, फिर जो एक सेल के एनिमल, अमीबा, इस तरह के एनिमल्स डेवलप हुए, फिर ह्यूमन बीइंग्स का जो नंबर है वो काफी बाद में आया। तो ये जो चेंज है, ये नेचर में यू सी इट्स ऑलवेज हैपनिंग। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, सूरज और रोशनी ये बहुत पहले से थी, वो हम ह्यूमन बीइंग से भी पहले थी। जब यहाँ ह्यूमन की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पे, उससे पहले भी लाइट का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। तो जब हमारे जिसको हम आदि मानव कहते हैं, वो जंगलों में रहते थे, ऐसा बताते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में, डार्विन में, कि वो जंगलों में मांस खाते थे, और इस तरीके से हुआ। जब कहीं बिजली कड़कड़ाती तो वो सोचते कि ये है क्या चीज, उनके अंदर एक जिज्ञासा जगती। तो कहीं ना कहीं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे देते कि वो भगवान है, वो हमसे नाराज है, तो ही इज ट्राइंग टू शाउट एट अस। तो दिस ये जो भगवान की जो इशू है, ये लोग बहुत पहले से ही ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहा है। अब ये कैसे रहा है इसके बारे में मुझे नहीं पता जाता, पर वो इस तरीके से सोचते थे। तो
अगर रिटन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो अभी के रिसेंट रिटन डॉक्यूमेंट हैं, एक ये है किताब अल मनाज़िर। किताब मनाज़िर का मतलब है लाइफ, और ये 1015 में हमारे पास जो थी, ये इजिप्ट के राइटर जो कहेंगे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करके ये इन्होंने खुद अपनी किताब लिखी थी। उस टाइम पे रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह नहीं होते थे। जैसे न्यूटन की आप बात करेंगे तो न्यूटन की मेन बुक है प्रिंसिपिया, और उस प्रिंसिपिया में इन्होंने वो सारी चीज लिखी हैं, वो उनके जो लॉज हैं और सारी बुक लिखी। तो ये किताब अभी हमें मिलती है और इसमें पता चलता है कि जो लाइट का जो पहला कंट्रीब्यूशन हुआ है, लाइट को समझने की कोशिश की है क्या, ये जो लाइट है ये है कैसे जिज्ञासा जागी। तो उसको लेके उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये एक किताब अल मनाज़िर जो अरबी में है ये लिखी हुई है। यूनाइटेड नेशन ने अभी 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट और टेक्नोलॉजीज डिक्लेयर किया था, क्योंकि 1000 साल हो गए थे पूरे इस किताब को लिखे हुए। तो यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस बिकॉज दिस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इजिप्ट। तो इस रिगार्डिंग हमारे यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट करके किया था। इन्होंने बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इन चीजों के बारे में स्टडी की थी ज्यादातर। और जो प्रिज्म है, देखते हैं आप, लाइट डिस्पर्स होती है डिफरेंट कलर्स में, वो चीजें इन्होंने इसमें मेंशन की हैं अपनी किताब अल मनाज़िर में। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक ट्रुथ्स की, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो एक्सेप्टेड है। तो स्पीड ऑफ लाइट आप सभी जानते हैं। मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, एंड यू विल से 3 and into 10 raised to the power 8। अभी तो हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं। देखिए गैलीलियो ने जो था इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जानने की कोशिश की कि जो लाइट है ये कितनी तेज चलती है, और एक बड़ा क्रूड सा एक्सपेरिमेंट। तो ये यहाँ नजदीक दिखाए गए हैं। वो 2 लोग थे, उन्होंने अपने पास में स्टॉप वॉच रखी और बहुत बहुत दूर की पहाड़ियों पे जाके खड़े हो गए वो, कि आप उस पहाड़ी पे खड़े हो जाओ वहां और मैं इस पहाड़ी पे जाके खड़ा हो जाता। अब देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट में एक बात आ रही है कि हम जो नेचर को, जब हम कुछ कहना चाहते हैं, नेचर को पहले स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा तब हम बताएंगे कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इसमें हम कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, जब तक हम एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ न कर लें, कोई हमें मिल ना जाए इसका हल, तब तक हम कोई बात नहीं कहते। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बल्ब ये अपना लाइट ऑन करूंगा और मेरे पास स्टॉप वॉच भी है, विल स्विच इट ऑन एट द सेम टाइम। तो आप तक पहुंचने में लाइट को टाइम लगेगा कहीं दूर पहाड़ी पे। जब आपको वो लाइट दिखेगी तब आप अपना लाइट ऑन करना उधर से, और फिर जब आप ऑन करेंगे तो वापस वो मेरे पास आएगी, मुझे टाइम लगेगा, एंड देन आई कैन सी माय स्टॉप वॉच हाउ इट इज, कितना टाइम लगा। इसके लिए क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो देयर हैज टू बी वेरी डिस्टेंट पोल, बहुत दूर पे वो पहाड़ियां थी। उन्होंने देखा कि फिर लाइट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतना टाइम लगा। तो अब ये बड़ा क्रूड सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन सी इसमें बहुत बड़ी एक्यूरेसी नहीं हो सकती, और बहुत मतलब स्पीड जितनी लाइट की है इसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो देखिए उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, और वो ये था, इट्स इनक्रेडिबली फास्ट, इट मूव्स 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो उन्होंने साथ में साउंड और ये लाइट दोनों से एक्सपेरिमेंट किया था, तो फर्स्ट दे सॉ दैट साउंड कितनी जल्दी उन तक पहुंचती है और वो मुझ तक आती है, और लाइट कितनी जल्दी आती है। तो उन्होंने कह दिया कि ये दोगुना फास्ट है। अब वो तो बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट, 10 टाइम्स कम, मतलब वो तो जो साउंड की स्पीड है वो 10⁻³ के ऑर्डर में है, और वो 8 के ऑर्डर में 10⁻⁵ टाइम्स फास्ट। तो यू सी
कोशिश की थी, बट इट्स नॉट वेरी रिलायबल एक्सपेरिमेंट। जो रिजल्ट आया वो भी कोई बहुत ज्यादा सही नहीं था, बट एक कोशिश की उन्होंने कि भाई बहुत फास्ट है ये स्पीड ऑफ लाइट। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, ये गैलीलियो और गैलीली ने किया था। फिर एक और खगोल शास्त्री रहे ओले रोएमर 1670 में, जब साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी उस टाइम पे। ये न्यूटन का टाइम है लगभग, वो वही लोग जानते थे। और दूर से वो अपनी जो टेलीस्कोप है उससे जो बॉडीज हैं, एस्ट्रल बॉडीज हैं, उनको देखते थे। तो जुपिटर पे ये देख सकते हैं आप, जो जुपिटर का मून है, जैसे हमारे अर्थ का मून है, ऐसे जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं। तो उसकी शैडो उन्होंने यहाँ पे अपनी जो टेलीस्कोप है वो उसे देख सकते थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, जो उनका मून है, इट वाज जो ल्यूनर एक्लिप्स, उस ल्यूनर का नाम था जुपिटर का लो, LO। तो उन्होंने देखा कि वो जब उसको कवर कर देता है जुपिटर को और फिर वो बाहर निकल आता है। ल्यूनर एक्लिप्स आपने देखा है कि चंद्रमा एक बार शुरू होता है और फिर एकदम खत्म होता है, तो उसके सामने ऑब्स्टेकल होती है, कितनी देर उसको लगी। अब देखो उन्होंने वो साल के डिफरेंट टाइम में किया। तो जब सन यहाँ है, एक बार अर्थ यहाँ है, एक बार अर्थ इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो जानते थे कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है और इसका डायमीटर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तक उस ल्यूनर एक्लिप्स को कितना टाइम लगा जुपिटर को, और यहाँ तक कितना लगा। अब ये डिस्टेंस फिर उन्हें पता चल गई कि डायमीटर ऑफ जो अर्थ का रेडियस है, उस अर्थ और सन का जो रेडियस है उसके बराबर है। एंड वो टाइम डिफरेंस को डिस्टेंस से उन्होंने डिवाइड किया, एंड दे फाइंड वेरी एक्यूरेट एक्चुअली। नाउ दिस नंबर यू कैन सी इट इज very close to what you know today. जो स्पीड ऑफ लाइट हम sophisticated इंस्ट्रूमेंट से करते हैं कैलकुलेट, उस टाइम पे 1670 में कर ली थी ये ओले रोएमर ने। और इस तरीके से उन्होंने जब उनके पास एक टेलीस्कोप थी, उसी से वो जो ल्यूनर एक्लिप्स उसका जुपिटर का देख के ये सब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद बहुत सारे तरीकों से स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करी गई, पर ये जो इन्होंने बताई शुरू में लगभग वही रही। इतनी एक्यूरेसी के साथ ये बहुत साल पहले ही प्रेडिक्ट हो गई थी स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तक किसी ने कुछ पूछना, कोई सवाल? मैं देखिए साइंस की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया, हम कब से जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। किसी ने कितने से एक छोटे से टेलीस्कोप से वो फाइंड आउट करने की कोशिश की। उनके पास क्या थी? एक जानने की इच्छा शक्ति थी, इंक्विजिटिवनेस थी कि मुझे पता लगाना है ये स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है। तो जब तक हमारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं होगा ना, मुझे पता लगाना है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप होगा, एंड वी विल नॉट प्रोसीड। तो आज देखिए, आज तो हमारे पास हम कंप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अब दो साइंस में दो तरह की थ्योरी डेवलप हुई, और वो जो आर्ग्यूमेंट वाली बात हुई, वो आर्ग्यूमेंट यहीं से शुरू हो गया, यहां से शुरू हो गया। तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, और उन्होंने पार्टिकुलर थ्योरी जो दी लाइट की, कि लाइट जो आ रही है जैसे किसी चीज के ऊपर गिर रही है, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। और उससे उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी थी। अगर आप पढ़ेंगे पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, वो है आज भी अवेलेबल, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं पढ़ाई जाती आपको, पर कुछ लाइब्रेरी में पुरानी किताबें अगर ढूंढेंगे, न्यूटन के प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ऑप्टिक, एक्चुअली इन्होंने एक ये लिखी थी बुक, ऑप्टिक्स, ये बुक भी न्यूटन की लिखी हुई है। इसमें ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने पार्टिकुलर थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कर दिए थे उन्होंने। तो लेकिन यहाँ पे जो क्रिश्चियन हाइगेंस एंड रॉबर्ट हुक, these were the people who were against this hypothesis of particles. Now this is a hypothesis. Unless you prove something in science, it is a hypothesis.
और उसको फिजिक्स मानती नहीं है। फिजिक्स डज नॉट एक्सेप्ट हाइपोथेसिस अनलेस यू प्रूव इट, ठीक है। तो हाइपोथेसिस से आप कोई चीज एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि आई अज्यूम दैट लाइट इज फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड आई कैन एक्सप्लेन दिस फाइन, यू कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, बट देन अनलेस you have some valid experimental proof, physics does not accept it. Here on the other side, these people have thought that light is some form of a wave. It is not a particle, but it is in some sort of a wave. And ये इनका आर्ग्यूमेंट चलता रहा जब तक कि हमारे पास एक सॉलिड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो गया लाइट का। जैसे न्यूटन्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल से उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया था। इवन डिस्पर्शन जो आप प्रिज्म में देख रहे हैं डिफरेंट कलर का, दैट आल्सो वाज एक्सप्लेन्ड विद दिस पार्टिकल फिनोमेना। बट नाउ एंटर्स द थॉमस यंग एंड दिस यंग्स फेमस एक्सपेरिमेंट। आप सभी परिचित हैं, आपने 11th-12th में पढ़ा है लाइट यंग का एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट क्या है? उन्होंने ऐसे स्लिट बनाई लाइट की और यहाँ एक अपर्चर बनाया which was very thin। फिर उन्होंने 2 स्लिट रखी यहाँ सामने, और फिर उन्होंने यहाँ एक प्लेट देखी अपनी एक रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन रखी और देखा। अब जब उन्होंने स्क्रीन पे देखा तो देखिए यहाँ पे you see the darkest spot, sorry brightest spot, darkest and bright and dark, ऐसे ऐसे उन्हें मिले, जहाँ पे एक जगह बहुत एक्सट्रीमली ब्राइट था और जहाँ पे एक जगह एक्सट्रीमली डार्क था। सो इस एक्सपेरिमेंट से अब आप क्या समझते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को देख के आप क्या कंक्लूड निकालोगे? ये रियल पिक्चर्स हैं, अरुण सर के पास लेजर है, वो आपको दिखा सकते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके लेजर से। अभी पॉसिबल हो सकता है अगर वो लेजर लाएं, एक डिफ्रैक्शन रिंग लगाएं तो ये ब्राइट डार्क रेंजेस हम देख सकते हैं। ओके, नाउ ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा। अब मैं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हुए अब आपसे कंक्लूजन पूछना चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख के आप क्या कंक्लूड करना चाहते हो? जो वो 2 पीछे हमारी लड़ाई चल रही थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, there were 2 groups which were arguing that no, light is a particle, another group was saying that no, light is a wave. What do you understand by this? इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल? Now this experiment without any doubt proves that light is a wave, because particle अगर लाइट है तो आप ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। There is no way you can explain this bright dark fringes. Only you know that when waves are meeting in phase, जब वो फेज में मीट करती हैं तो वहाँ ब्राइटेस्ट स्पॉट देती हैं, और जब वो फेज के अपोजिट है, अगेंस्ट है, तो वहाँ डार्क कर देती हैं। मतलब एक फोटोन मिलके दूसरे फोटोन के साथ डार्क स्पॉट प्रोड्यूस करता है। हम अज्यूम तो ये करते हैं कि एक फोटोन आया, दूसरा आया, तो वो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा ब्राइटनेस देगा, बट नो, देयर विल बी डार्कनेस देयर, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फेज शिफ्ट। अगर उसमें 180 डिग्री का फेज है तो उसको कैंसिल कर देगा लाइट के एस्पेक्ट को, एंड यू सी द डार्क स्पॉट्स। अगर आप पार्टिकल देखिए क्या है, ऐसा है जैसे आप एक गन से बुलेट निकल रही है, एक अपर्चर बनाइए और अपर्चर ऐसा हो कि उसमें आसपास जो बुलेट है वो जा ना सके, और आप बुलेट मारिए जैसे निशाने पे निशाना लगाते हैं ना, और बीच में आप अपर्चर छोड़िए, तो अगर जो भी बुलेट अपर्चर से निकलेगी वो जहाँ भी आपकी स्क्रीन है, पीछे की वॉल है, उस पर कहीं जाके आसपास में वो निशान बनाएगी और वो एक ही स्पॉट बनेगी। वो ब्राइट डार्क स्पॉट क्यों बनाएगी? अगर एक बुलेट यहाँ से निकल के गई, वो अगर थोड़ी तिरछी हो गई, यहाँ से निकलेगी, तो आपको एक स्पॉट यहाँ मिलता और एक बुलेट का स्पॉट यहाँ मिलता। आपको 2 बुलेट के स्पॉट मिले होते, जस्ट इफ इट वाज अ पार्टिकल। अगर वो पार्टिकल होता तो हमें बस 2 स्पॉट दिखते, हमें कहाँ दिखते, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें ये मिला है। अब इससे एकदम क्लियर हो गया वो जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि नहीं हाइपोथेसिस के पार्टिकल है, ये वेव है। थॉमस यंग ने प्रूव कर दिया कि विदाउट एनी डाउट दैट लाइट इज अ वेव।
It's some sort of a wave. What kind of wave it is we don't know at the moment, but it is a kind of wave. ये उन्होंने प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और साइंस में आप देखेंगे कि लोग बड़े फ्लेक्सिबल माइंडसेट के होते हैं, वो हाइपोथेसिस को लेके चल रहे हैं लेकिन अपनी बात पे अड़े नहीं रहते जिद्दी की तरह। जब किसी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि वो वेव है तो उसको सभी मान लेते हैं कि दिस इज मोर देन इनफ, आपको प्रूफ मिल गया है ना कि दिस इज अ वेव। सर कैन आई शो? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी वो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा इसका दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइट ऑफ कर दीजिए। लेजर है और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये सिंगल स्लिट है, हल्की सी ओपनिंग है बीच बीच में जब आ रहा है तब आ रहे हो। ये देखिए ये जो लंबा सा बन रहा है ना, ये लॉन्ग, ये यही है। और इस ये सिंगल स्लिट है, अगर इसके आगे 2 स्लिट और लगा देंगे तो ये बिल्कुल डार्क ब्राइट दिखेगा। 2 स्लिट है, एक है सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट में आपको ये स्प्रेड जैसा दिखेगा। इसमें देखिए ये डिफ्रैक्शन पैटर्न भी दिख रहा है आपको सिंगल स्लिट में। और ओपन कर देता हूँ तो मैंने और ओपनिंग कर दी और ओपन कर दिया इसको बेटर, ये आपको सिंगल पॉइंट की तरह दिखेगा। हाँ राइट, एंड देन लेट मी टेक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हाँ, ये ग्रेटिंग 15,000 LPI है एंड इसके बारे में बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए स्पॉट्स बहुत दूर जा रही हैं और इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की ये ब्राइट डार्क स्पॉट की चीज है। बट अगर हम इसको बंद करें ये देखिए, ये स्पॉट्स देखिए, फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, एक सेंटर मैक्सिमा है, देन फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकंड ऑर्डर। ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन है। ग्रेटिंग का ये थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन है। उसमें आप देख रहे हो पहले सिंगल सोर्स है, फिर 2 लाइन है। इसमें सिर्फ 2 स्लिट है, इसमें बहुत सारी स्लिट है। ग्रेटिंग में 15,000 स्लिट्स हैं 15,000 1 इंच में, मींस 2.52 सेंटीमीटर में 15,000 स्लिट्स हैं इसमें। तो ये देखो आजकल ये इतना आसान हो गया है, हमारे पास लेजर की अवेलेबिलिटी है, ये हम कहीं पर भी अपने घर पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये अब देखिए कैसे हम इसमें चेंज आता है सिस्टम में, इसके बारे में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, बहुत अहम सवाल है। अब ये वेव तो है, ये तो प्रूव हो गया हमारा डिफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस से, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल आ गया। वो अहम सवाल ये होगा कि वेव ऑफ व्हाट? Now wave of what? What is the physical entity which is oscillating? If I ask you like this, जैसे आप पानी को देखते हैं, शांत है, आप उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, आप उसमें पत्थर मारते हैं पानी में, तो रिपल पैटर्न बनता है। जहाँ स्पॉट पड़ता है उसके ऊपर जो पानी की हाइट है वो ऑसिलेट करती है, ऊपर नीचे जाती है। तो जहाँ फिजिकल एंटिटी है हाइट ऑफ द वाटर और द मैटर, दैट इज ऑसिलेटिंग। अब हम साउंड वेव की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मीडियम है दैट इज ऑसिलेटिंग। अगर वो साउंड वेव किसी मीडियम से पास हो रही है तो मीडियम के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे विल वाइब्रेट। So here the vibration is happening in the matter. These are vibrating. और ऐसे ही तो अब लेकिन लाइट के बारे में तो ये देखा गया कि इट कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस। इसके तो मीडियम नहीं चाहिए। फ्री स्पेस में जब कुछ नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ ऑसिलेशन दे रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हम इसको वेव कहेंगे, यहाँ तो हम देखते हैं कि वेव का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होना चाहिए।
खाली मैथमेटिकल पैरामीटर से बात नहीं बनती है। हमने एक वेव लिख दी y = a sin ओमेगा t, अब वहाँ पर वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन आपसे कभी नहीं पूछेगी कि फिजिकल पैरामीटर क्या है। लेकिन जो फिजिक्स वाले हैं वो सोचेंगे कि ये जो y है, ये जो ऑसिलेशन कर रही है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। जब एयर में हम ट्रैवल करती है साउंड वेव, तो इट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर व्हिच ऑसिलेट्स। So density of air is a physical quantity. When you throw a stone in the pond, the height is the physical quantity. Length is a physical quantity, you know already from the measurement. तो ये है क्या physical quantity which is oscillating, and it can travel in free space also. तो अगर ये खाली मीडियम में ट्रैवल करती तो हम कह सकते थे कि मीडियम के ऑसिलेशन है, हमारा आंसर मिल जाता हमें। हम जैसे हमने साउंड वेव में कह दिया और उसमें प्रूव भी कर दिया कि मीडियम के ऑसिलेशन है, लेकिन इसको मीडियम चाहिए ही नहीं, इट कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस। सो देन व्हाट इट इज। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए people at that time proposed that there is something called ether. जो यूनिवर्स है, ये हमारी जो पृथ्वी है, सूरज है, जितने भी ग्रह हैं और जितना भी आकाशीय पिंड है पूरे या आकाश गंगा है, वो ईथर है थ्रू आउट स्पेस में, और उसमें वो सबमर्ज्ड है। तो मतलब अगर लाइट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक फ्री स्पेस में जा रही है तो वो विदाउट मीडियम के नहीं जा रही, वो ईथर के मीडियम से जा रही है, और ईथर में ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रपोज कर दिया लोगों ने इसको लाइट के फिनोमेना को आगे बढ़ाने के लिए कि ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन ये किस चीज का ऑसिलेशन है। नाउ दे से दैट this is the oscillation of the ether medium, and that is how people, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है कि अभी तक एक हाइपोथेसिस ही रहा उस टाइम तक। जैसे ये जेलो देख रहे हैं आप, इसके अंदर कुछ चीजें सबमर्ज हैं, ऐसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये आप ऐसे समझिए जेलो के बीच में ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और ये पूरी ईथर है चारों तरफ, एक मीडियम है। तो जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें परसीव नहीं होता, पर वो है, ऐसा माना गया है। तो ईथर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने स्पेसिफिकली ये प्रूव किया है अपने स्पेक्ट्रोमीटर की डायरेक्शन चेंज करके, साल के कई सालों में चेंज करके, बिकॉज ही वाज विलिंग टू डिटेक्ट द ईथर। जब लोगों ने कहा कि ईथर है, तो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स तो उसको तभी मानेंगे जब आप डिटेक्ट कर लेंगे, आप फाइंड आउट कर लेंगे ईथर है या नहीं। Now he did lot of experiment throughout many years, but उनके हम देखते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। He could never find ether. Ether उनको जो कंसेप्ट जिस लेके चले थे वो, जहाँ पे उन्हें फ्रिंज शिफ्ट दिखाई देनी थी कि अगर ईथर होती तो मीडियम में चलती, तो हमें जो माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंज शिफ्ट आनी चाहिए थी, वो कभी नहीं होता हुई, कभी भी। So then that was the strong conclusion that there is no such thing as ether. ईथर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि उसको कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया गया। इस सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया और सोचा कि ईथर तो हम मान लेते हैं और देख लेते हैं कि लाइट के फिनोमेना, फिर हम कहेंगे कि जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो ईथर के मीडियम में हो रहे हैं, एंड देन वी कैन एक्सप्लेन लाइट। तो लोगों ने एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ हाइपोथेसिस, अजम्पशन लाए, बट दे फेल्ड आउट, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर। तो ईथर का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया, एंड इट फेल डाउन। It could not be supported from the experimental finding. जो हमारी experimental finding ने कभी नहीं बताया कि ईथर जैसी कोई चीज होती है। वो तो नहीं हो रहा है आप? I'm fine. Okay. So you can ask the questions in between if you are interested. आपने इनका नाम सुना है, माइकल फैराडे का? बहुत फिजिक्स में आपने चाहे बैटरी पढ़ी है, केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में फैराडे लॉ पढ़े हैं अपने मैग्नेटिज्म के, इनका बहुत जगह नाम आता है। मतलब उस टाइम पे नोबेल प्राइज नहीं हुआ करता था, ये अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके बाद शुरू हुआ नोबेल प्राइज 1905 में। अगर उस टाइम पे ये होते तो इनको कम से कम 3-4 नोबेल प्राइज बन जाते थे, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका फिजिक्स में और साइंस का। तो ये जो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने प्रपोज किया कि ये जो लाइट है, नाउ ही हैज सम प्रपोजिशन,
जब ये लैब में जा रहे थे, ये अब मैं इनकी थोड़ी सी कहानी आपको शेयर कर दूं, आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेट करेगा। ये जो इंग्लैंड में काम करते थे, लेकिन ही वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, वेरी पुअर बैकग्राउंड। ही हैज टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफ लैब अटेंडेंट। उन्होंने अपनी जो फिजिक्स की लैब में जाकर नौकरी कर ली, और इनको काम क्या दिया गया कि जितने भी केमिकल्स हैं उनकी लिस्ट बना के, रजिस्टर बना के रखोगे आप, और उन्हें अपना हमें कौन सा केमिकल खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट है, उनकी लिस्ट बना के रखोगे। नाउ हु कैन स्टॉप द क्यूरियस माइंड? अब देखिए, जो आदमी जानना चाहता है उसको कौन रोक सकता है, चाहे वो लैब अटेंडेंट है, चाहे वो कुछ भी है। तो यू सी ही वाज, जब सभी लोग चले जाते थे, जो डेवी वाज ए बिग साइंटिस्ट इन कैवेंडिश लैबोरेटरी, आपने सुनी होगी, फेमस कैवेंडिश लैबोरेटरी लंदन में। तो ही यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, और जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब हम वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कंपास रखी थी पास में, कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, तो कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, तो जो देन दे रियलाइज कि भाई ये कंपास में डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, तो जो वो साइंटिस्ट थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब इन्होंने, जैसे पीछे खड़े रहते हैं थोड़े से, अपना देखते रहते हैं क्यूरियसली ये क्या हो रहा है, इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री स्पेस में जा रहे हैं, या इट्स अवेलेबल, तो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री स्पेस में पास हो रही है। अब जब उन्होंने ऐसे बताया मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में पास हो रहे हैं, तो लोगों ने उनके ऊपर हंसे कि भाई ऐसा तो कोई ही नहीं, ये आप क्या बता रहे हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि कह देते हैं कि भाई आप अपना लैब टेक्नीशियन है, आप वही काम संभालो, आप क्यों फिजिक्स के चक्कर में पड़ते हैं, और उनको झड़क दिया पकड़ के। अब बट यू सी ही, उन्होंने जब वो बाद में जब चले जाते थे, रात में 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते थे, एंड ही डिड इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, और इन्होंने पेपर लिखा, और पेपर में प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री स्पेस में प्रोपेगेट होते हैं, पूरा इन्होंने पेपर लिख दिया। लेकिन जब उसको कम्युनिकेट करने की बारी आई, तो बिकॉज ही वाज नॉट अ फैकल्टी मेंबर और फ्रेंड, तो उनका जो लैब में अपोज किया लोगों ने कि भाई आप भी पेपर लिख रहे हो। लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि वी एक्चुअली हमें लगता है जो तुम कह रहे हो वो सही है। अब देखिए, यहाँ लोग एक पर्सनल उसको ईगो ना लेके, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, साइंस इसलिए प्रोग्रेस करी कि भाई मुझे, आप भले ही लैब टेक्नीशियन हो, तो आपकी बात सही लग रही है मेरे को, जो आप बता रहे हो, आपने जो लिखा है पेपर में, आई फाइंड इट इज लॉजिकल। तो देन ही पुट दिस पेपर फॉरवर्ड, ये पेपर आया। शुरू में इसकी बहुत लोगों ने बड़ी नाक मुंह चढ़ा के देखा, लेकिन जब देखा कि ये पेपर है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, यू नो, एंड जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उनको पूरी तरह से, जो हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, आज तो हम ये सब जानते हैं, फैराडेज लॉ बन गए हैं, तो इट बिकेम एस्टैब्लिश्ड फैराडे थ्योरी, और इनको तुरंत रॉयल सोसाइटी का, जो ब्रिटिश की रॉयल सोसाइटी है, उसका मेंबर बन गए। अब देखिए कितने बड़े एकदम से जॉब इन्होंने लिया कि एक लैब टेक्नीशियन से, एक लैब से उठ के, और ही बिकेम द मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी, एंड देन ही बिकेम ए रिसर्चर। So I just want to tell you this story that if you are a motivated mind, if you want to do, कितनी भी परिस्थितियां, किसी भी परिस्थिति में आप रहें, वो आपको नहीं रोक सकती। आपको एक फर्म डिटर्मिनेशन है ग्रो करने का, आप में विश्वास है, जो आप कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, एंड यू कैन प्रोग्रेस एनीवेयर। तो इन्होंने बताया लाइट के बारे में, इन्होंने अपने लास्ट ईयर में इन्होंने एक लेक्चर दिया, उसमें कहा कि मुझे ऐसा फील होता है। अब वो सवाल अभी तक अटका हुआ है, देखिए कि ये किस चीज के ऑसिलेशंस हैं। अगर लाइट एक वेव है, तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ऑसिलेटिंग? सो he proposed that these are the electric and magnetic field which are oscillating when light is propagating. It's the oscillation of electric and magnetic field. क्योंकि ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जब मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में प्रोपेगेट कर रहा है, और उन्होंने क्लू कहाँ से निकाला? उन्होंने क्लू निकाला कि दिस फील्ड आर प्रोपेगेटिंग वेरी फास्ट, almost at the speed of light, something like this. Could not measure it, but and then they realized because they are so fast, it feels like, it seems that light is an electromagnetic wave. That was his proposition without any proof. Now enter
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, आप लोग मैक्सवेल के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आपने पढ़ी है। तो ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड ही ब्रॉट फॉरवर्ड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थे, इनको इन्होंने अपनी जो 4 इक्वेशंस में कंबाइन किया, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आ रहा है c, they calculated its value and it is always coming equal to the speed of light. Now this speed of light was already known, and Ole Romer के टाइम से हमें पता था speed of light कितनी होती है। तो he was stunned and he said that these fields are propagating with the speed of light. And then he went to Michael Faraday and he told that you are right. Light is an electromagnetic wave. Because when I solve my equation, I always find this c is the speed of light, and that's what you are also saying, that जो physical quantity है जिसके oscillations हो रहे हैं free space में, हम वो physical quantity ढूंढ रहे थे कि वो क्या है, वो नहीं मिल रही थी हमें, किस चीज के oscillations हैं। अगर ये light है तो wave है, तो कहीं ना कहीं किसी physical quantity के oscillations तो होने चाहिए। तो then the answer हमें मिल गया, जैसे ही मैक्सवेल्स ने ये equation दी। Now we know that idea of light इस तरीके से है, आप ये ऑलरेडी थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट इज प्रोपेगेटिंग, एंड एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं और दूसरे फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। अब यहाँ से ये प्रपोजिशन होने से जितनी भी सारी थ्योरी है सबकी एक्सप्लेनेशन दी गई, चाहे वो पोलराइजेशन फिनोमेना हो, चाहे वो स्कैटरिंग फिनोमेना हो, एवरीथिंग फेल इनटू द प्लेस वेरी नाइसली। So then it explains everything now. It became a very established theory that light is an electromagnetic wave. तो वहाँ तक जब हम बात कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे वो वेव है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो उसका किस टाइप की वेव है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो ऑसिलेट करती है, वो सवाल खड़े थे। अब ये सवाल के जवाब आगे चल के हमें मिलते चले गए। Things as we said, we were able to connect the dot. तो ये इसका इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का रियल सेटअप है। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब देखिए जहां से चले थे फिर हम घूम के वहीं वापस आ गए। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई, ऑब्जर्व किया गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका आपके वेव नेचर से। अगर लाइट की वेव नेचर है तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, तो अगर किसी की भी वेवलेंथ लाइट की कितनी भी कम हो, अगर हम ज्यादा देर तक इंसिडेंट करेंगे तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाना चाहिए। बट हमने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे लाइट है तो वो कभी एमिट ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन। And then Einstein came forward and he said, electron is a particle. Sorry, light is a particle. जो जहाँ न्यूटन ने कॉन्सेप्ट एक बनाया था कि the light is a particle. Now you see, ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलपमेंट होने में कैसे टाइम लगते हैं, and how we have to change our perceptions. We should always be perceptible to changes. अगर नहीं है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि what we are doing, and जो साइंस है वो आगे कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब परसेप्शन फिर चेंज होनी शुरू हुई पार्टिकल थ्योरी की तरफ से, जहां कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो ऐसे देखे गए जहां उन्होंने फोटोन का कॉन्सेप्ट लाया। फोटोन इज अ पार्टिकल and a single photon is something like particle and hits the electron and उसमें sufficient energy होती है, तो single photon can eject a single electron, and the Compton effect also was explained from the particle nature of light. That is the photon, इसको आप photon कहते हैं। And when this concept of photon came, हम photo electric effect को भी आसानी से explain कर सकते हैं, हम Compton effect को भी कर सकते हैं। अब wave phenomena लाइए यहाँ, सारी गड़बड़ हो जाती है, ना आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना आप क्वांटम इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो नाउ you see, let me tell you the most recent picture of light, what we can think of. So it is actually both. अगर हम इस तरीके से देखें,
इसको पिक्चर करना though it's very difficult, it's not the real picture, but we can think of electromagnetic light as photon, just like this, and it also has an oscillation of electromagnetic field. So photon itself, which we are saying is a bundle of light, is in itself is carrying electromagnetic field, which are just like perpendicular to each other. So whatever, when we want to see the diffraction, it also shows us the diffraction and interference phenomena. But it is also in some sort of a bundle or packet of energy which moves in form of some particulates, which we also call particles. So here both concepts merge. So it's, I begin to see light is as a photon which is having an electric and magnetic field in itself. And with this concept, now we have no problem in explaining whether you talk of photoelectric effect, Compton effect, or diffraction or interference. So that's how this is the recent understanding or the more accepted understanding that it is in the waveform also, if you would like to see the photon, or it's in the form of bundle of energies also. So it is both. It depends on what experiment you are doing. Of course, quantum mechanics में वो duality का concept भी है जहाँ particle wave होता है और wave particle होता है, तो उसके साथ ही ये एक तरह से correlate होता है. तो अभी आपने देखा कि आपने शुरू में 3-4 बातें मेरे से बताई कि what is scientific temperament, और वो सारी चीजें यहाँ फिट होती हैं. यहाँ हम लॉजिकल एस्पेक्ट भी है, यहाँ हमारा आर्ग्यूमेंट वाला एस्पेक्ट भी है कि we are arguing that is correct and that concept is correct. और हम जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे आ रहा है, जो which is a real truth, उसको हमने एक रियलिटी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया. So that's how the development of this concept of light, which we had always been inquisitive to know how it is, वो है क्या, उसने हमको ये दी समझ. अब इसके पीछे एक ही कारण है कि कुछ माइंडसेट ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जानना चाहते थे कि भाई ये कैसे है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. अगर हम खाली नेचर को ऐसे ही बोल के छोड़ दें कि ये बहुत अच्छा है, तो जो आज आप साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देख रहे हैं वो नहीं हो पाता. तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ as in terms of scientific temperament, what kind of attitude as a student of science you want to inculcate in yourself? Are you willing to change your mind when you find the truth in a different way as you expected? बिल्कुल, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने देखा कि ट्रूथ एक अलग है, तो हमें उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए. और यही बात इसमें हम देखने को मिल रही है. और जो भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं. एंड वी हैव बीन लॉजिकल आल्सो. सो आई होप दिस ये प्रेजेंटेशन मैंने इनफैक्ट जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ भी दिए हैं, और इस तरह का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिसका साइंस का रहा है, इसका पीछे से आई हैव रेड द डिफरेंट लिटरेचर आल्सो. तो उसको पढ़ के ये मेरी अपनी इच्छा थी, मैं जानना चाहता था कि ये सब वो कैसे रहा है कि हम कभी उसको वेव बता रहे हैं, कभी हम उसको फोटोन बता रहे हैं, एंड हाउ आई कैन बी कंसिस्टेंट. हम कंसिस्टेंसी कैसे बना सकते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो नॉर्मल दिखें, ठीक है. तो मैं बस आपके सामने यही अब रुकता हूँ, और ये मेरा प्रेजेंटेशन थी आपके सामने से. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट. और अब it's open for discussion. If you want to ask any questions, and are you really enlightened? Are you really have got something? You एक कहते हैं ना take home message. कि भाई जब कोई कहीं जाता है, कोई अटेंड करके पासते हैं, उसको पूछते हैं कि what is the take home message? ऐसे ही बैठ के आ गए या कुछ लेके भी आए? So I hope you have some take home message from today's talk. I think after this beautiful session, we have to ask 2 questions. Everyone must ask 1 question. Yeah. But he has asked that.
कोई बात नहीं, उसमें लोग फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आया होगा। जी सर आपने वेव नेचर जो है काफी जो है एक्सप्लेन किया, लेकिन पार्टिकल नेचर जो है बहुत कम, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए उसमें कुछ ऐसी चर्चा होने का नहीं है, क्योंकि अगर हम, जैसा मैंने ये बताया कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ क्रूड पिक्चर, उसको पिक्चर करना, उसको रियलिटी देखना पार्टिकल की फॉर्म में, ये बड़ा मुश्किल है। एक तो हम उस जगह की, उस लेवल की बात करना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, जो हम, जिसका हम कभी परसेप्शन ही नहीं बना सकते। हमारा जो माइंड है इट इज ट्रेन्ड टू थिंक क्लासिकली। ये फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बातें हैं और इसको आगे कैसे इसको परसीव करना है। जो अभी मैं आपको बोलूं कि देयर वाज ए instead of bird I say monkey was flying in the sky. Do you accept? You don't accept because it does not fit into my common sense. It's not fitting into what I see all around me. Now quantum mechanics is something which is beyond our common sense. And this is, the word is used counter intuitive. जो टनलिंग फिनोमेना है वो हम कहते हैं पार्टिकल एनर्जी कम है फिर भी goes out of the barrier and you can see it tunnels through it. Classically the way we think it's not possible, but it happens, we know this. Quantum mechanics says that a particle can exist in a quantum state, many quantum states at the same time. ये ऐसा ही है, ये जैसे मैं कहूँ आप इस क्लास में बैठे हैं, आप बराबर वाली क्लास में भी बैठे हैं, आप, so you cannot, classically our thinking is like this, that if you are sitting here you cannot be somewhere else, you are just here. But quantum mechanics says that you can be everywhere. Now those things does not fit into our mind and making pictures of this is very difficult. So we just take an idea that you know it's just a particle. और उसके आगे अगर आप आइंस्टाइन में देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, just he used the word it's a bundle of energy, it's packet, and he avoided making any picture because he knew that if I try to make any picture it would be wrong, I would convey the wrong message. साइंस में ये बहुत important बात है कि anything which you cannot prove, which you cannot measure, don't try to say. So I am just avoiding to say anything beyond this, what has been there already. Let me say something. Actually, beginning में क्या हुआ कि people talked about the rectilinear propagation of light शुरू में. Light straight line की तरफ मुझे दिखती भी है हमें कहीं. मुझे कमरे में और कहीं से हल्का सा कोई छेद पड़ जाए, कहीं से लाइट एंटर करती है, तो straight line में लाइट ट्रेवल करती है. और उसी के बेसिस पे लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, राइट? और अच्छे से एक्सप्लेन हो गई. फिर आइंस्टाइन ऐसा न्यूटन ने कुछ बात की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, she talked about that, and after that कुछ और फिनोमेना देखे. Even people talked about the wave nature of light, but जब लाइट आती है हमें कहीं वेव दिखती नहीं है. स्ट्रिंग के ऊपर मुझे, जब मैं स्ट्रिंग को कट करता हूँ then wave can be visible, but लाइट में तो मुझे ना तो वेव दिख रही है ना वो पार्टिकल दिख रहा है. But हमारे आसपास there are certain phenomena, वो phenomena हमें ये सोचने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि its nature should be like that. तो वेव नेचर के साथ भी वही हुआ, पार्टिकल नेचर के साथ भी वही हुआ. ठीक है, तो हमें कुछ दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं. वो हमारी परसेप्शन के बियॉन्ड है, जो नहीं दिख रहा है, बट उसके सिग्नेचर्स मुझे कहीं दिख रहे हैं. So it should be like that. Sir, am I right? Little bit. I want to say something. I think. कोई भी जवाब दे सकता है इसका. सर ने अभी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लेजर से. उसमें जब सर ने स्पीड कम रखी थी तो लाइट जो स्प्रेडिंग मोड में थी, जब स्लिट को चौड़ा कर दिया तो एक पॉइंट जैसा दिख रहा था. और जब मल्टी स्लिट्स के थ्रू देखी लाइट डॉट्स के डिस्टेंस पे, ऐसा क्यों? ओके, सो पहला है कि जब हमने स्लिट का साइज बड़ा था तो लाइट मुझे सिंगल डॉट की तरह दिख रही थी, जैसे ऑर्डिनरी थी वो दिख रही थी, जैसे ये बिहेवियर मुझे ऐसे ही दिख रही थी, राइट?
बट जब मैंने इसका स्लिट का साइज कम किया, और अगर मैं माइक्रोमीटर स्केल इसमें है, ये रफली कोई 10 माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज था। 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, और इट मे बी मोर देन दैट, इट मे बी 100 माइक्रोमीटर। सो अगर मैं 10 माइक्रोमीटर की बात करूं और ये विजिबल लाइट है, एंड इफ आई ट्राई टू लुक एट इट, देन ये जो लेजर लाइट है ये 532 नैनोमीटर के, मींस 0.5 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ है। तो इसकी वेवलेंथ 10 माइक्रोमीटर देखा जाए और 0.5, सो ये जो साइज है, स्लिट का जो साइज था वो और इसकी जो वेवलेंथ थी वो था कंपैरेबल, उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट आसपास था, ठीक है। तब मुझे डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा था, मींस इट्स अ वेव नेचर, मतलब जो मुझे ये पैटर्न दिख रहा है सिंगल स्लिट के साथ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई कॉल इट एज द वेव नेचर। ये वेव नेचर है। जब लोगों ने ये चीज़ देखी तब उसको बोला कि नो, लाइट हैज ए वेव नेचर। बाकी ये कि अगर मैं वेव नेचर, वो जैसे उन्होंने बताया कि मुझे दिखती तो नहीं है वेव नेचर कहीं भी, लेकिन अगर मैं अज्यूम करूँ वेव नेचर है तो मैं ये सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो देन माय बेसिक असम्पशन इज राइट कि दिस इज अ वेव। तो ऐसे तो हमें माइक्रोन के नीचे से कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब हमारी आई माइक्रोन तो नहीं, उससे भी ऊपर ही मिलीमीटर तक ही दिख पाती है। माइक्रोन तो तब देख पाएंगे जब हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे, माइक्रोन से नीचे तो तब भी नहीं जाते। तो हमारे जो परसेप्शन है उसमें हम बाउंड ना रहें। जो रियल जो साइंस है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है, बिलो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वहाँ में कुछ भी चीज़ दिखती नहीं है, परसीव नहीं होती है, उसके बारे में हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। और अगर हमारे वो बेसिक असम्पशन सही हैं तो जो प्रेडिक्शन हम देंगे, जो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब हम जो डार्क रीजन थे वो एक्सप्लेन कर पाए कि फ्रिंज पे डार्क रीजन क्यों आ रहे थे, ब्राइट रीजन क्यों आ रहे थे, वो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया जब मैंने अज्यूम किया लाइट वेव है। When I assume light is a particle, I cannot explain it. तो मेरे जो assumption है वहाँ पे उस टाइम पे वो particle nature मुझे नहीं visible होगी। But when I do photoelectric effect or Compton effect, I see that light also have a particulate nature. It's some sort of bundle of energy. If I just assume it as a wave, I fail to explain the phenomena of photoelectric effect. और यही कारण था, एक बहुत rigid perception बन गई थी कि light wave है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई एक्सप्लेन ना कर पाए हुआ क्या। एंड नाउ उस रिजिडिटी को ब्रेक करने के लिए आइंस्टाइन केम एंड ही अगेन थॉट इन द वेज ऑफ न्यूटन दैट इट्स अ पार्टिकल एंड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट, एंड ही वाज एबल टू एक्सप्लेन इट विद कंसिस्टेंसी। जब वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया तो हमारी जो परसेप्शन है और रिफाइंड हो गई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है एंड एक सम सॉर्ट ऑफ बंडल भी है, तो ये बोथ ही है एक तरह से। लेकिन उसको once again to picture it is extremely difficult because we have not seen it, nobody has seen it. But उसका एक हम perception बना सकते हैं माइंड में कि वो ऐसा होगा, वहीं तक हम जा सकते हैं। और उसी के बारे में जो फिजिक्स है, वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसीलिए वो अवॉइड करती है किसी भी तरह की पिक्चर बनाने में या असम्पशन करने में। वो एक उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उस पर ड्राइव करती है सारी चीजें। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमें पार्टिकल्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नोशन बनाना, हमारा जो दिमाग है वो इतना ट्रेंड है क्लासिकली सोचने के लिए। हम जनरेशन से, जब से हमारे बुजुर्ग पैदा हुए उससे भी आगे ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री है, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग द नेचर थ्रू आवर आईज एंड थ्रू दैट इट हैज बिकम साइकी, परसेप्शन एंड डीएनए टू थिंक क्लासिकली। नाउ वी कैन नॉट गो इनटू दैट परसेप्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन आवर सिस्टम इज एबल टू थिंक ओनली क्लासिकली। वो ट्रेन है क्लासिकली सोचने के लिए, वो वैसा ही सोचेगा, उसको आप वो दूसरे तरीके से वो नहीं सोच सकता। जस्ट आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ आई से monkey is flying, you will say it's an absurd statement. So this is what binds us here. अब देखिए थोड़ा ऐसे भी देखिए, अब हम कहते हैं कि उनकी शर्ट ब्लू है, वो येलो है, ये ब्लैक है, वो ग्रे है, इस कलर्स की बात करते हैं। So these colors, you know, it's just an optical phenomenon. There is no color in any object. It is a feeling which is there in our brain. जो color की feeling है वो हमारे brain में generate होती है. It is not there in any cloth. The
color. It is only what is there is some dye molecule which absorbs light and the particular wavelength it sends it. It only knows the wavelength. अब उस wavelength को हम कैसे perceive करते हैं वो हमारा brain है. At that particular उस particular wavelength को वो एक sensation generate करता है. हमें देखता है बताता है वो blue color. बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें वो receptors हैं ही नहीं. उनमें वो खाली उसको फिर वो ब्लैक या शैडो भी करेंगे, जैसे आप पहले कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपने देखा हो. तो when we this perception when we say it is also because of our brain and our system what we see outside, so we can say that इसको ही हम subjective reality की बात करते हैं. जब क्वांटम मैकेनिक्स में objective reality और subjective reality की बात आती है तो subjective reality is this that our instrument, our brain, our nerves, everything is involved in the observation. तो हम अपने आप को objective reality देखने के लिए आपको अपने आप से अलग हटना पड़ेगा. तो अपने आप से अलग हम अपनी perception से अलग हटना पड़ेगा. हमें जो हम उसको अपने senses से perceive कर रहे हैं उससे अलग हटना पड़ेगा. That's only the way to understand it in a better way. अगर हम सही चीज फिजिक्स को जानना चाहते हैं तो अपनी जो perception है कि हमने बना रखी है उससे हटना पड़ेगा. चीजों को more logically लेना पड़ेगा. I'm not deviating from the path of logical. It's only by perception, which is colored. It is giving me the sensation of color. It's all my receptors and analysis of brain which is telling me the colors. But in nature, in particles, there are no colors. You know, they are only wavelength or particles in that sense. एक और मैडम ने पूछा था that what happens for the case of this grating, right? So this grating it's 15,000 lines लिखा हुआ है इसके 15,000 LPI means lines per inch, right? 15,000 grooves per inch, right? And when I try to look at the size of the slit, then size of the slit is again it might be 10 times or 100 times smaller than that. So that means if the slit size gets decreased, so जो separation है center maxima और first maxima के बीच में वो increase कर जाती है. अगर वो कम होती है, slit width कम होती है तो separation बढ़ेगी, and if slit width increases then it gets decreased. That means it's inversely proportional. और जो हम reciprocal space देखते हैं रियल स्पेस और रेसिप्रोकल स्पेस वो कांसेप्ट भी यहीं से आता है. अगर मैं उसको रियलिटी में विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ एक्सरे डायफ्रैक्शन और लेजर के एक्सपेरिमेंट को हम फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन के साथ रिलेट करके देखते हैं. यहाँ से भी हम स्लिट साइज निकालते हैं, वहाँ पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन निकालते हैं बिकॉज वेवलेंथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द इंटर एटॉमिक सेपरेशन और द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स वन एंड सेम. यहाँ मुझे फिर चीजें दिख रही हैं but वहाँ X-rays में मुझे कुछ नहीं दिख रहा. But I'm utilizing X-rays to look inside the matter that what is the interatomic separation. I think that may be the possible answer. तो जैसा अभी ये देख रहे हैं इसमें बहुत सारी स्लिट्स हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखती because our eye, the resolution of our eye is not that high. We cannot see. ऐसा लग रहा है जैसे खाली ग्लास की विंडो है. एक बार देख लीजिए आप. जब आप सर्कुलेट कर लाइट डालेंगे तभी आपको पता चलता है कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, इसमें बहुत सारी अपर्चर बने हुए हैं. इट्स नॉट विजिबल. सो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड और बाउंड इन आवर परसेप्शंस. यहाँ अगर इस रूम में एक्सरे हो तो उसको एक्सरे डिटेक्टर जो बनाया है वही पता लगा सकता है कि एक्सरे है. हमें तो पता भी नहीं चलेगा रेडिएशन या गामा रेज यहाँ है. We cannot know because our system is not perceptible to it. हम जो आँख है, कान है, हमारी बॉडी है उसको नहीं फील कर सकते. It's also made of matters, all atoms and molecules. So it's mostly, you know that our body is mostly 70% water and the rest is hydrocarbons and bones. So these are all atoms and molecules. They are just arranged in some different structure. And we are perceptible to certain things with our eyes with some hundreds of microns. You can say hundreds of microns की जो separation है तो हम उसको थोड़ा नजदीक से देख पाएंगे 0.1 mm को.
लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई 10 माइक्रोन हो गई तो भी हम नहीं पता लगा सकते उसके बीच की सेपरेशन का। उससे छोटा देखना होगा तो माइक्रोस्कोप लेनी पड़ेगी आपको। माइक्रोस्कोप से देखते हैं अमीबा, हम लैब में जाके वो हमें दिख जाता है। और फिर अगर उससे भी छोटा आपको देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। वहाँ आप जो वेवलेंथ है ट्यून कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, जिससे उसका रेजोल्यूशन 1 एंगस्ट्रॉम तक हो जाता है। तो वहाँ किसी सरफेस के ऊपर एटम्स भी देख सकते हैं आप। तो ये हम ये माने कि हमारी जो आंख है, कान है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक रेजोल्यूशन है, इसका एक परसेप्शन है। तो अगर हम खाली इसी को देख के समझते रहेंगे तो मुश्किल होगी। जो माइक्रोस्कोपिक साइंस है स्पेशली which is that quantum mechanics और atoms और ये मॉडल, इसको हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों कभी देखा तो है नहीं। एटम तो किसी ने देखा है? एटम ओनली मॉडल है, एक परसेप्शन है जिसके बेस पे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो that's it. Any more question? You will ask, otherwise I will keep you standing one by one and then ask the question. Second question. From BSc side. One BSc वाले students. आप खड़े हो। जो भी आपके मन, देखो इतना मन कलेक्ट हुआ, अगर हमारे मन में क्वेश्चन ही आ रहा हो तो कुछ दिल मानता नहीं है ना। और इतने सालों से आप लोग साइंस पढ़ते हो। किसी भी तरह का you should ask. क्या तो इनको मजा नहीं आया साइंस? You see the training to think, it does not happen in one day. We have to start somewhere. ये तो जो मैंने आपको बताया, जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो you don't ऐसे में चाहिए कि okay I believe what is written. ऐसे कभी साइंस डेवलप नहीं हो सकती, ऐसे कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो सकता। I will do it myself and see if it happens like this or not. This is the correct scientific temperament. उससे हम चीजें कर पाएंगे उसको डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। और वो जो हैबिट है वो इनकलकेट करनी होगी हमें अपने अंदर। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो हम कई बार गिरते हैं, कहीं हम गाड़ी कई बार टकराते हैं और फिर हम 5-6 महीने में पहले हम फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। पहले तो हम गियर भी लगाएंगे तो बड़ा देख के लगाएंगे, बड़े कॉन्शियसली चलेंगे और फिर 6 महीने बाद तो हम साइकिल पे जा रहे हैं तो लोगों से हाय हाय करते जाएंगे, हम देख पीछे रहे, साइकिल आगे चल रही है, वो सब कुछ चलता रहता है। बिकॉज वी हैव बिकम ट्रेन्ड। एक चीज है उसको हम लगातार करते रहें तो हम धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हैं। तो डोंट वरी, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आई टेल यू दैट वी हैव टू डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसी तरह का टेम्परामेंट होगा तो आप साइंस में प्रोग्रेस करेंगे। अगर मेरा टेम्परामेंट एकदम अलग है इस चीज से, I'm just happy what is available, then this is not a scientific temperament. I accept what you say without verifying. This is not a scientific temperament. So we have to, when you need to do something in your life, you want to progress in your life, you want to become a teacher, professor, scientist, then what you need to do is develop this temperament first. देखिए मार्क्स की कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर आप कहीं के 60% भी ले आते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि हर जगह तो आपको कंपटीशन देना है, एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसको साइंस को फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सब चीज़ हमें चाहिए। एंड मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया माइकल फैराडे का कि अगर आप सुनिश्चित कर लें तो परिस्थितियाँ कोई भी हों, आप कुछ भी हो, आप कहीं से कुछ भी बन सकते हैं। वो दैट योर वर्क विल डिफाइन यू कि भाई उस बंदे ने ऐसा काम किया कि जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कुछ फिनोमेना को, बहुत साल से एक्सपेरिमेंट में लगे थे, उन्होंने एक झटके में वो चीज़ करके उसके ऊपर पेपर लिख दिया एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिलेशन थे जिसके बारे में मैक्सवेल्स इक्वेशंस बाद में बनी, he brought out all the concept by doing some experiments in the lab. तो ये सभी चीज़ पॉसिबल है। हम
दिक्कत ये है कि हम ये मानते नहीं है, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक रॉन्ग स्विच के शायद हम नहीं कर सकते, शायद हम एक छोटे गांव से आते हैं, शायद हम एक छोटे टाउन से आते हैं, शायद कुछ बड़े लोग ऐसा कर पाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन टेल यू, जो लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो बिल्कुल एक गांव से आए हो जहाँ डिस्कनेक्टेड हो या छोटा टाउन हो, वो आगे बढ़े हैं। और आज जितने भी साइंटिस्ट हमारे DRC में हैं, इसरो में हैं, उनका कोई आप बैकग्राउंड देखेंगे ना घर का, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से आए हैं। वो जाते हैं, पहुंचते नहीं वहां तक, वो किसी दूसरे चक्कर में लग जाते हैं। वो मतलब रियली जो स्ट्रगल करके आए हैं लोग, वो वहां तक पहुंच पाए हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे कुछ हो। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पैसे के लिए मोहताज रहे, और फिर भी वो कितने आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक विल चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, दैट्स ऑल। रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, और एक सही सोच, हमारा एटीट्यूड हमारा सही है, हम क्या करना चाहते हैं वही मैटर करता है। अभी सर ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज के जो लोग हैं, मैं सर के बारे में बताऊं, सर उत्तर प्रदेश से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। देन ही वेंट टू साहा इंस्टीट्यूट कैलकाटा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हो गया, साहा इंस्टीट्यूट हो गया, रामन इंस्टीट्यूट हो गया, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट करी, एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू फ्रांस, वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट की। तो सर अगर गांव से उस लेवल तक जा सकते हैं, तो आप भी जा सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको स्टार्ट कब करना है। अगर अभी से कर दोगे तो पहुंच जाओ, अगर बोलोगे कल से करेंगे तो मुश्किल है। So you have to start right now. When you believe in this philosophy, you can do anything. So इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ अमरजीत सर का। Now I would like to call Dr. Surjeet to his vote of thanks and memento to Dr. Amarjeet. Thank you, sir, for such an energetic talk. बच्चों, सर ने आपके लिए काफी क्वेश्चन छोड़ दिए प्रेजेंटेशन में। जैसे सर बोल रहे थे कि डार्क स्पॉट बन रहे थे, देन ब्राइट स्पॉट बन रहे थे, क्यों बन रहे थे बच्चों? ये आपके पास वाइवा के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, ओके। देन बच्चों, सर बीच में आ रहे थे, मैं बड़े डीपली देख रहा था सर को। तो बच्चे गेम थ्योरी से सर पार्टिकल नेचर में भी आ रहे थे, जो आज की डेट में इस्टेब्लिश्ड है कि ड्यूल नेचर है लाइट का। तो बच्चों, कैसे लाइफ की जर्नी हुई कि कभी कोई फिनोमेनन हम वेव नेचर से डिस्कस कर रहे हैं, देन वी आर कमिंग सर्टेन टू पार्टिकल नेचर। लेकिन बच्चों, क्या हुआ ऐसा कि कॉम्पटन ने वेव नेचर की हेल्प नहीं ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर की हेल्प दी। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। आप इसको कॉम्पटन इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट। तो आपके लिए, आप भी मेरे ख्याल में आप भी नोबेल प्राइज के हकदार बनेंगे, राइट। तो साइंस बोलते हैं, जैसा कि बार बार आता है कि इफ यू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स देन यू विल गो टू, सर कहाँ बोलते हैं, स्वीडन स्वीडन अकेडमी में जाएंगे आप, राइट। देन अब सर बता रहे थे काफी अच्छा से इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है कैसे बन रहा है। तो बस समझो अपनी थ्योरी से कनेक्ट कर लीजिए। बीच में ब्रैकेट्स लॉ भी आ रहा था, आप पढ़ते हैं लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, राइट। तो जो स्पेस का जो स्पेस था स्लिप का, उसका आसपास नेचर वेवलेंथ के आसपास उसका जो कैलकुलेशन आ रही थी। देन आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हम बॉल रखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी वेवलेंथ की जरा जजमेंट कीजिए कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, राइट। बॉल फेंकते हैं आप, उसका मास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी? और लाइट की वेवलेंथ आपको पता है एंगस्ट्रॉम में है, तो राइट आई थिंक वो किलोमीटर मीटर्स में भी आ सकती है, राइट।
तो ये चीज़ें भी हमने थोड़ा सा देखिएगा। जैसे सर बोल रहे थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, तो बच्चों हम इस जर्नी की बात कर रहे थे। अभी सर ने फैराडेज का नाम भी लिया, तो फैराडेज बच्चों वो है, उस टाइम किंग्स की डायनेस्टी थी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे सर, आई थिंक है। तो व्हेन ही डिस्कवर्ड द करंट थ्रू अ मैग्नेट, तो उसके बाद बल्ब भी ग्लो किया होगा। तो जब बल्ब ग्लो हुआ तो बच्चों छोटा सा बल्ब को ग्लो हुआ है करंट बना। तो किंग्स ने पूछा कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, इतना टाइम लगाया, इसका हमें क्या फायदा है? तो उनका बड़ा एक स्टीक आंसर था कि सर सूनर और लेटर यू विल स्टार्ट टेकिंग टैक्स आउट, जिसको हम बिजली का बिल बोलते हैं आज की डेट में। तो ये स्टेट के लिए इनकम होगी आपके लिए कि कुछ टाइम बाद सब्र कीजिए, आप इससे पैसा कमाएंगे, राइट। तो क्वालिफाइड हम देख रहे हैं, आज बिल हमारे घरों में आते हैं, ये सारा फैराडे का कमाल है। तो इसी तरह से बच्चों आप इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात भी करते हैं, जो किसने डिस्कवर किया था बच्चों? ये थोड़ा सा है नाम का आइडिया, लाइट की बात चली है, क्या नाम था बच्चों? रेज योर हैंड्स। बच्चों ही वाज थॉमस एडिसन, राइट। तो थॉमस एडिसन ने बल्ब जब बनाया तो उसको बहुत प्रयास करने पड़े उनको। स्टार्टिंग में टीचर ने बोला कि आपका बच्चा नहीं चलने वाला है, इसको घर ले जाइए, बड़ा मंदबुद्धि है कि, लेकिन कोई ना कोई क्वालिटीज हर इंसान में होती है। किसी एक सब्जेक्ट में चल रहा होता है तो दूसरे सब्जेक्ट में कई बार बिल्कुल स्लो चला होता है या नहीं चल पाता है। तो उनकी कंप्लेंट की पेरेंट्स से कि उनके पेरेंट्स से ले जाओ अपने बच्चों को, आपका बच्चा मंदबुद्धि है। तो उसी तरह से रामानुजन की बात है। रामानुजन जो हो मैथ्स में तो एक्सेलेंट आते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को फेल होते थे वो, सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कर देते थे कई बार हो कि जिस तरह टीचर आ रहा है कि जी 6 से बनाना है बच्चों, आप 3 बच्चों में बांट रहे हो तो कितने कितने आ जाएंगे? तो बच्चे बोल रहे थे 3 दिन आ जाएंगे, तो क्वेश्चन है ना। बाकी यानी कि 2 या 3 का जो पहाड़ा बोलते हैं हम। लेकिन कई बार वो बड़े अजीब से क्वेश्चन करते थे, जो टीचर्स जो था वो होता था तो क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई बनाना नहीं, और मेरे पास आना है 2 बच्चे डिवाइड करने के लिए है। Neither I have a banana, nor I have some students, so that I can distribute it. तो इसका आंसर क्या था? तो बच्चों के क्वेश्चन से आज एलिमेंट्री भी आया, डिवाइड भी आया, तो ऐसे जैसे क्वेश्चन करते थे, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है इसमें ऐसा नहीं होता कि उसका आंसर का हो, हर चीज का आंसर होता है। तो ऐसे ही थॉमस एडिसन ने जब बोला था कि 1000 आपने हजारों प्रयोग कर लिए इसके लिए, बोले 1000 प्रयोग तो कर लिए, लेकिन 1000 प्रयोग करने के बाद ये डिस्कवर किया मैंने कि बल्ब कैसे बनाना है। तो मैंने 1000 मेथड वो निकाले जिससे क्या, जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो मेरी अटेम्प्ट तो फेल नहीं थी, राइट। तो बच्चों हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अमरजीत सर का, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि he will keep on coming here time and again to illuminate our students. तो साथ में धन्यवाद अरुण जी का और हमारे प्रिंसिपल जी का, जो हमेशा इस ऐसी जैसी एक्टिविटीज को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज हैं। साथ में धन्यवाद मोनिका मैडम का, डॉक्टर मोनिका, देन प्रोफेसर शीतल, जिन्होंने जो इस प्रोग्राम के पीछे काफी है। और साथ में और बच्चे जो जिस बच्चे ने बुके बनाया, खड़े हो जाएंगे प्लीज बच्चों, एक बिग क्लैप, राइट। तो देखो बिल्कुल ऑप्टिमम यूज है हमारे रिसोर्सेज का, हमारी वाटिका की है, इतना ब्यूटीफुल बुके बनाया, ठीक है, और पैसों की भी बचत करी। आप हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, इकोनॉमिक हो जाता है, तो ऐसी जैसी एक्टिविटीज में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरुण जी। So now I request Dr. Amaljeet Singh, please come on the stage, and Sheetal Madam, Monica Madam, please momento.
फोटोग्राफ ले लेंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ बच्चों के साथ भी हाँ, बच्चों के साथ कर रही है। वहाँ पे ठीक रहेगा सर, मुझे लग रहा है बच्चों यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा क्लोज है ना। खड़े हो गया तो ये नहीं है अरुण जी, हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, बच्चे थोड़ा स्टैंडिंग कर देंगे, हम चेयर पे बैठ जाएंगे। सर फर्स्ट पीछे वाले खड़े हो रहे समझ समझ फोटो मैं आ जाऊँ तो बैठ ठीक है